دار العلوم ہے یہی دار العلوم ہے، دار العلوم ہے یہی دار العلوم ہے، جس کے ہر ایک فیض کا اتنا عموم ہے، جس کے ہر ایک فیض کا اتنا عموم ہے، عرب و عجم سے تاب خراسان و روم ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وقال الله تبارك وتعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثلكم من البشر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمير المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میرے دوستوں، آج میں ایسے موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس کی طرف سے ذرا سی بھی توجہ ہٹائیں گے تو آپ کو نہ پچھلی بات سمجھ میں آئے گی نہ اگلی بات اس کی وجہ سے سمجھ سکیں گے۔ اور بات میں کرنے چل رہا ہوں عقیدے کے اوپر۔ آج ہم لوگوں کا عقیدہ بہت کمزور ہو چکا ہے۔ میرے دوستو، میں اپنے بات کو سیدھے آپ اپنے مقصد کی طرف لے چلتا ہوں۔ میں تمہیداً کچھ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو 4 عناصر سے پیدا کیا۔ نمبر 1، انسان کے اندر پانی کا بھی دخل ہے۔ اگر انسان کے اندر پانی کا دخل نہیں ہوتا تو انسان کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان کے اندر اگر پانی کا وجود نہیں ہوتا انسان کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھتے چلیے کہ رمضان المبارک آتا ہے تو ہم لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو صبح سے لے کر شام تک اگر مجھے پانی نہیں ملتا ہے، ہم لوگوں کو پانی نہیں ملتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں، بیچ میں کہتے ہیں ہم ابھی روزہ توڑ دیں گے، مجھے پیاس برداشت نہیں ہے، میں پیاس کو اپنی برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اس لیے انسان کے اندر اگر پانی نہیں ہے تو اس کا وجود بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، دوسری بات میں آپ کو بتاتے چلتا ہوں۔ دوسری بات، انسان کے اندر ہوا کا بھی دخل ہے۔ اگر انسان کے اندر ہوا کا دخل نہیں ہوتا تو اگر ہمارے اوپر ہوا کو قید کر دیا جائے، ہمارے پاس ہوا نہ آئے، انسان کبھی زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ انسان کے اندر ہوا کا بھی دخل ہے۔ تیسری چیز میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں،
لیکن اگر اللہ چاہے تو بن سکتا ہے، لیکن ظاہراً دیکھا جائے تو کبھی چاول تیار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آگ کا بھی انسان کے اندر دخل ہے، اگر آگ سے اس چاول کو پکایا نہیں گیا تو انسان کھا نہیں سکتا ہے۔ چوتھی مثال میں آپ کو دیتا چلتا ہوں، انسان کے اندر مٹی کا بھی وجود ہے، اگر مٹی سے انسان کو پیدا نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، خلقہ من تراب، میں نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میں نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ میں ان چاروں چیزوں کی، چاروں عناصروں کا میں ایک مجموعہ بنا کر میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ چائے جو ہم لوگ آج پیتے ہیں، چائے بھی 4 عناصر سے بنتی ہے۔ چائے کا وجود بھی 4 چیزوں سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 پانی سے ہوتا ہے، نمبر 2 دودھ سے ہوتا ہے، نمبر 3 چینی سے ہوتا ہے، نمبر 4 چائے پتی سے ہوتا ہے۔ آج اگر ہم چائے پی کر آتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں پانی پی کر آیا ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں دودھ پی کر آیا ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں چینی کھا کر آیا ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں چائے چبا کر آیا ہوں، بلکہ سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ آج میں چائے پی کر آیا ہوں۔ تو چائے بھی 4 عناصروں سے بنتا ہے۔ اگر آج ہم چائے کے وجود پر پیتے ہیں تو چائے کا نام لیتے ہیں۔ چائے کا وجود جب اس میں چائے پتی ڈالی گئی، دودھ کا وجود مٹ گیا، پانی کا وجود مٹ گیا، پانی نے اپنا رنگ بدل دیا، دودھ نے اپنا رنگ بدل دیا، چینی پگھل گئی، دودھ پیور ہو گیا، چائے پتی اس میں مل گئی، یہ چارے مجموعے مل کر ہم لوگوں کے لیے وہ چائے تیار ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو انسان بنا کر فرشتوں پر فضیلت دی، اور حضرات فرشتے کرام حضرت آدم علیہ السلام کی بشریت کو سمجھتے ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کرتے ہوئے حکم خداوندی پر سجدہ ریز ہو گئے۔ قرآن مقدس میں آتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى۔ قرآن نے آگے چل کر ابا کا استعمال کر دیا۔ اللہ رب العزت نے سارے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اے فرشتوں، اے میرے مقدس فرشتے، حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو۔ سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے لگتے ہیں، حکم خداوندی پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، مگر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو وہاں سے نکال دیا۔ میں آپ کو اگلی بات بتاتا چلتا ہوں، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو انسان بنا کر فرشتوں پر فضیلت دی۔ فرشتے انسان کی بشریت کو سمجھتے ہوئے حکم خداوندی پر سجدہ ریز ہو گئے۔ اب یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت کا چلتا ہے، اور آخر میں جا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ حضرت آدم کی اولاد میں سے ہے، کیونکہ انسان کا آنا حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہی ہے، اور یہی تقاضا تھا کہ انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت انسان میں سے ہی بھیجے، اور اس کے سر پر نبوت کا تاج رکھ کر دوسرے انسانوں سے ممتاز کر دے۔ میرے دوستو، ذرا غور سے سمجھیے، بات عقیدے کی چل رہی ہے۔ آج اگر کتنا بھی علامہ اور فہامہ ہو، اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، چاہے جتنا بھی بڑا علامہ ہو، لیکن اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، نہ وہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ سب سے پہلے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنا عقیدہ درست کر دیں۔ آج علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی انبیاء کرام افضل البشر ہیں، اور ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بشر ہی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور صاف صاف اعلان کرا دیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ میں تم میں سے ہی ایک بشر ہوں، فرق مجھ میں اور تم میں یہ ہے کہ مجھ پر آسمان سے وحی کی جاتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی ہے، مجھ پر آسمان سے نزول ہوتا ہے، تم پر آسمان سے وحی کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں صاف صاف اعلان کروا دیا، قل انما انا بشر مثلکم
यूहा इलैहि, ऐ नबी आप अपनी जुबान से ऐलान कर दीजिए कि मैं तुम में से ही एक बशर हूँ। फर्क ये है कि मुझ पर वही आती है, तुम पर वही नहीं आती है। मेरे दोस्तों, बात समझने की है, जरा गौर से समझिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया और फरमा दिया कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी आप मेरी वहदानियत का ऐलान कीजिए, आप मेरी उलूहियत का ऐलान कीजिए, आप मेरी वहदानियत को बयान कीजिए। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत को बयान करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत को बताना आप पर ज़रूरी था, इसी तरह आप पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बशरियत का भी ऐलान करवा दिया और फरमा दिया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैहि। क्यों? इसलिए कि जब कुफ़ार मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअजिज़ात को देखे, शक्ल कमर को देखा, उंगलियों से चश्मा जारी होते हुए देखा, अबू जहल को गहरे कुएं से निकालते हुए देखा, रातों रात जन्नत और जहन्नम, ज़मीन और आसमान की सैर करते देखा, मुख्तसर सा खाना सैकड़ों लोगों को खिलाते देखा, अखलाक और किरदार का समंदर देखा, तो फिर कुफ़ार और मुशरिकीन ये बोल उठे कि ये बशर नहीं, ये बशर हो ही नहीं सकता, बशर का इन चीज़ों से वजूद नहीं हो सकता है, ये हमारी मखलूक में से नहीं है, बल्कि ये दूसरी मखलूक का कोई बहुत बड़ा जादूगर है, बशर का इन चीज़ों से वजूद होना मुहाल है। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ऐ नबी आप अपनी नबुव्वत वाली जुबान से ऐलान कर दीजिए कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैहि, मैं तुम में से ही एक बशर हूँ। फ़र्क ये है, मैं दलील के तौर पर आपको एक आयत और बताता चलता हूँ। कुल सुबहाना रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर इंसानों से मुमताज़ कर दिया, क्योंकि नबुव्वत का मिलना ही ये दूसरों पर बरतरी और दलील है। मेरे दोस्तों, आज हम पर ये इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं कि उलमाए देवबंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बड़ा भाई समझते हैं, अपने हम जैसा रुतबा समझते हैं। मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि उलमाए देवबंद का ये अक़ीदा है और आज भी ये अक़ीदा है और कल भी ये अक़ीदा था और क़यामत तक ये अक़ीदा रहेगा कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का मुनकिर वो भी काफिर, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का मुनकिर वो भी काफिर, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम रुतबा समझे वो भी काफिर। मेरे दोस्तों, हमारे अक़ीदे का ऐलान कुरान में भी होता है, हदीस में भी होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के अक़ीदे के मुवाफ़िक़ है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के अक़ीदे के मुवाफ़िक़ है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के फरमान के मुवाफ़िक़ है, हज़रत इब्न अब्बास के कौल के मुताबिक है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा अक़ीदा कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है, क्योंकि कुफ़ार मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का इनकार किया तो आज के रज़ाख़ानी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का इनकार करते हैं और कहते हैं कि वो नबी बशर कैसे हो सकता है, जिसने उंगलियों के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिया, वो नबी बशर कैसे हो सकता है, जिसने अबू जहल को गहरे कुएं से निकाला वो नबी बशर कैसे हो सकता है, जिसने रातों रात ज़मीन और आसमान जन्नत और जहन्नम की सैर करता है वो नबी बशर कैसे हो सकता है। मैं तुझे बताता हूँ, यही अक़ीदा मेरा भी है और तेरा भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को गहरे कुएं से निकाला, ज़मीन और आसमान जन्नत और जहन्नम की सैर की सैकड़ों में, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिनटों में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लम्हों में ज़मीन से लेकर आसमान तक जन्नत और जहन्नम का सैर किया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का दूसरा पहलू भी है, ज़रा उसकी तरफ नज़र करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सारी चीज़ें जो ये मुअजिज़ात ज़िक्र किए गए हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात में से हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअजिज़ात में से हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का दूसरा पहलू भी
है, ज़रा हम उसकी तरफ नज़र करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ में तलवार लेकर कुफ्फार के कत्ल और मुकाबले के लिए खड़े होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इशारा करते तो कुफ्फार का काम तमाम हो जाता, लेकिन बदर का मैदान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत को साबित करता है और शक्ल कमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को साबित करता है। मेरे दोस्तों, एक लम्हा और आपके, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैकड़ों मिनटों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत से जहन्नम तक सैर किया, आसमान ज़मीन से आसमान तक मिनटों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबका नज़ारा कर लिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का दूसरा पहलू भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीने की तरफ हिजरत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना 3 दिन में पहुँचते हैं। हिजरत की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत को साबित करती है। हिजरत की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत को साबित करती है और वाक़या मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को साबित करती है। मेरे दोस्तों, मेराज के मौके पर इसी वाक़ये पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। आज के रज़ा खानी जब इस आयत पर नज़र करते हैं तो उनकी ये दिल दहल जाता है। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कुरान मुक़द्दस में ऐलान फरमा दिया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते थे कि वाक़या मेराज को देखकर कल के रज़ा खानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का इनकार करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का ऐलान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे पहले ही फरमा दिया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। अल्लाह ने कुरान के अंदर कितने प्यारे अल्फाज में इरशाद फरमाया, बिअब्दिही का अल्फाज इस्तेमाल कर दिया, ना कि बिनबीही, ना कि बिरसूलिही का अल्फाज इस्तेमाल कर दे। लेकिन जब रज़ा खानियों ने लफ्ज़ अब्द को देखा तो कुरान से इस लफ्ज़ को हटा तो नहीं सकते थे, लफ्ज़ को हटा तो नहीं सकते थे, लेकिन उसके अंदर मानवी तहरीक ज़रूर कर सकते थे। जब उसकी नज़र इस आयत पर पड़ती है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम यूहा इलैहि, जब उसकी नज़र अहमद रज़ा खान बरेलवी की नज़र इस आयत पर पड़ती है तो उससे ये रहा नहीं गया, बल्कि वो सोचता है कि मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मानवी तहरीक की जाए। मेरे दोस्तों, जब वो अपनी कलम को उठाता है और इस आयत के अंदर मानवी तहरीक करना चाहता है और वो सोचता है, और उसके हम मानने वाले कहते हैं कि अगर इस आयत की असली सूरत बिगाड़ी ना गई तो हम सबका जो अक़ीदा बातिल बनाया हुआ है, हम सबका जो अक़ीदा है वो बनाया हुआ है, वो अक़ीदा बातिल हो जाएगा। अहमद रज़ा कलम को उठाता है और कुरान से लफ्ज़ को तो हटा नहीं सकता है, लेकिन उसमें मानवी तहरीफ कर सकता है। मानवी तहरीफ करते हुए कहता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम यूहा इलैहि, मैं तुम में से ही ज़ाहिरन एक बशर हूँ। उसने लफ्ज़ ज़ाहिर को कुरान के अंदर मानवी तहरीफ कर दी। मैं पूछना चाहता हूँ रज़ा खानियों से कि उनकी क्या हिम्मत बनती है, क्या ये इब्ने अब्बास की तफसीर से साबित है, क्या अब्दुल कादिर जिलानी की तफसीर से साबित है, क्या अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की हदीस के तफसीर से साबित है? अगर नहीं साबित है तो क्यों तुमने मानवी तहरीफ की? मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक हर चीज़ आपकी बशरियत को साबित करती है। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हज़रत अब्दुल्ला का लाडला बेटा बनकर, आमिना का लख्ते जिगर बनकर, अब्दुल मुत्तलिब का चहीता पोता बनकर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवान हुए हज़रत खदीजतुल कुबरा और हज़रत सिद्दीक़ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु के मुक़द्दस शौहर बने, हज़रत हुसैन के नाना जान बने, हज़रत अली और हज़रत उस्मान के दामाद बने, और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के दामाद बने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत को साबित करती, अगर आपकी बशरियत का तुम आपकी बशरियत का ऐलान करते हो तो तुम अब्दुल्लाह का लाडला बेटा होने का इनकार करो, तुम अब्दुल मुत्तलिब का चहीता पोता होने का इनकार करो, तुम आमिना का लख्ते जिगर होने का इनकार करो, तुम आयशा और हज़रत खदीजा के मुक़द्दस शौहर होने का इनकार करो। तुम अगर इन चीज़ों
का इनकार करते हो तो तुम हसन हुसैन के नाना जान होने का इनकार करो। तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का अगर इनकार करते हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का अगर इनकार करते हो तो हज़रत अली और हज़रत उस्मान के दामाद होने का इनकार करो। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का तुम इनकार करते हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के दामाद होने का इनकार करो। अगर नहीं, अगर तुम इन चीज़ों का तकाजा बशरियत से साबित है, अगर तुम इनकार करते हो तो तुम बताओ क्या कोई नूरी मखलूक किसी का बाप बना, किसी का बेटा बना, किसी का शौहर बना, किसी का बाप बना? अगर बना हो तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, क़यामत तक ये चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई नूरी मखलूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के बाप बने, नूरी मखलूक किसी का बाप बना, किसी का बेटा बना, तो तुम चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ अगर तुम साबित कर दो तुम्हारी क़यामत तक की गुलामी। मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूँ वक्त की किल्लत की वजह से मैं अपनी तकरीर को यही ख़त्म करता हूँ। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने अक़ीदे पर कायम व दायम रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।